ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਰਕੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਪਰਸਨਲੀ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਲਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਸ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਲਾਰਮਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵੱਲ ਸਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ ਨੇ, ਬਿਜ਼ੀ 9 to 5 ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਕਾਮ ਰੱਖੂਗੀ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖੂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਪਾਵਾਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵੈਰੀ ਫੇਮਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੀਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਲਮ ਟੋਪਰਾਨੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੀ CEO ਆਫ ਸਿਵਾਂਤੀ ਹਰਬਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼। ਨੀਲਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। It's a pleasure. Thank you so much for the opportunity. It's always gives me a pleasure to talk about Ayurveda, promote Ayurveda, and it gives me this is my passion in life. It gives me direction what I need to do, and I'm so happy to share something my journey with you. Oh, that's lovely. अच्छा नीलम जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी और आयुर्वेदा की जर्नी कब शुरू हुई? That is, I think, since birth, like I was introduced to Ayurveda because being born in that family, so like we knew what is causing Vata, what is causing Pitta, तो वो तो पहले से information तो थी। और फिर मैंने बहुत सारे वैद्य से देखा कि वो कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक अकाउंटेंट थी, मैं फाइनेंस में थी, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी आयुर्वेदा सीखने की। लेकिन वो बैकग्राउंड में तो वो था, वो नॉलेज था, वो जैसे मेरी मदर कुकिंग करती थी तो मुझे पता था कि आयुर्वेद क्या होता है। फिर वैद्य को देखा, फिर हर्ब्स देखे, लेकिन यहाँ कनाडा में आने के बाद चेंज ऑफ वेदर, यहाँ की स्ट्रेस, यहाँ की लाइफ, तो उसके बाद जब मुझे हेल्थ इश्यूज़ आए तो मेरे एक कैनेडियन फ्रेंड थे, तो मुझे बोलते कि नीलम आपको तो यू हैव अ वाता इम्बैलेंस। तो मैंने सोचा कि ये गोरा है और उसको पता है कि वात पित्त कफ क्या है, और मैं तो ये फैमिली से आई हूँ, मुझे तो पता है कि वात। तो फिर मैंने सोचा मैंने कभी क्यों नहीं देखा कि आयुर्वेद से भी ये ऑल्टरनेटिव है। तो उसी टाइम मुझे लगा कि मुझे तो ये नॉलेज है, मुझे पता है आयुर्वेद क्या है, तो मैं खुद रिसर्च करने लगी। और उसके बाद जब मेरी आर्थराइटिस, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी, वो ठीक हो गई, तो लोगों ने बोला कि वाई डोंट यू लर्न हीलिंग, क्योंकि इफ़ यू कैन हील योर सेल्फ यू कैन हील अदर्स। तो उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेद सीखना चाहा, लेकिन उस टाइम क्या था कि ना तो कोई आयुर्वेद की स्कूल थी, ना तो कोई टीचर्स थे, तो ऐसे ही सेल्फ स्टडी करने लगी। और उसी टाइम मुझे चाइनीज़ मेडिसिन के डॉक्टर्स मिल गए, तो मैंने उनसे TCM सीखा और बहुत सारी दूसरी मोडालिटीज़ सीखी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो आयुर्वेद में ही था। तो उसके बाद मैं केरला गई, वहाँ बहुत सारे अष्टवैद्य को मिली, वहाँ से उनके फॉर्मुलेशंस देखे
और मैंने देखा था कि जब मेरी हेल्थ में इश्यूज थे तो मुझे त्रिफला चाहिए था, मुझे हर्ब्स चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो कनाडा में तो कुछ कोई हर्ब्स लाता ही नहीं था। तो जब मैंने वहाँ देखा केरला में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं लेके आऊँ। तो मुझे लगा कि इतना तो क्या डिफ़िकल्ट होगा, जैसे दूसरे लोग वाइटामिन ला के कंपनियाँ बनाते हैं, तो मैं भी ऐसा आयुर्वेद की कंपनी बना लूँगी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि हेल्थ कनाडा के इतने रेगुलेशंस हैं, इतनी कंपटीशन है न्यूट्रिशनिकल इंडस्ट्री में, तो धीरे धीरे सब सीखते गई। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट स्टार्ट किए, तो 5 प्रोडक्ट के साथ मैंने कंपनी स्टार्ट की थी। तो 2007 में मैंने कंपनी स्टार्ट की। उस टाइम आई वाज द फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग हेल्थ कनाडा रेगुलेटेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन कनाडा. That was the first time that happened. Wow. Yeah. Wow. It has been a journey. Now I'm into hundreds of stores. I'm into different countries, and everywhere I go, I promote Ayurveda. So you will be amazed to see that there is an interest of Ayurveda. Like I was in Vietnam, I was in Korea, and people they knew about Ayurveda, and everybody wanted to learn, and they were so impressed with Ayurveda. So I'm saying कि we have to have that awareness. इन इंडिया में तो है, बाबा रामदेव ने और दूसरे लोगों ने इतना प्रचार किया है, तो इंडियन पॉपुलेशन दे आर ऑलरेडी अवेयर. लेकिन कनाडा में लाइक वी हैव टू एजुकेट आवर साउथ एशियंस इनटू आयुर्वेदा. एग्जैक्टली. वी फील वेरी ऑनर्ड कि आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और आपने कनाडा को कितनी एक बड़ी मैं कह सकती हूँ इनके हाथ में लाके गिफ्ट दे दिया, परोस दिया इनको. कि वो तो देखो, ये मेरी कंपनी का नाम क्या है, सेवांती. दिस इज माय सेवा, माय डिवोशन टू आयुर्वेदा. क्योंकि अगर इफ देयर इज ईगो यू कैन नॉट ब्रिंग सच अ ह्यूज साइंस इनटू कनाडा. तो दिस इज माय डिवोशन, एंड इफ आयुर्वेदा हैज ब्लेस्ड मी with my health, and I want to share that with other people. लवली. अच्छा, आयुर्वेदा की बात चल रही है, आपसे जानना चाहेंगे सरल शब्दों में आयुर्वेदा क्या है? So 2 words, आयुर and वेदा, so the science of life. लेकिन only difference is what is life. Life is not just the birth and death. Life is one that enriches you, which gives you your purpose, your dharma in life. So that life we are talking. So for example, Western medicine, जैसे pharmaceutical medicine, they also cure disease. What makes Ayurveda different? Ayurveda goes into mind, body and consciousness. So how you understand yourself. तो जो योगा है और आयुर्वेदा दोनों जुड़े हुए हैं. So they are like sister sciences. तो on a spiritual path, to go into yoga, yogic journey, you have to prepare your body, and वो आयुर्वेद सिखाता है कि पहले फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए, फिर मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद टू बी एस्टैब्लिश्ड इन योर सेल्फ. स्वस्थ, लाइक एज वी से इन हिंदी और संस्कृत, स्वस्थ, one that is established in yourself. So that is what gives Ayurveda its true meaning. So what is healthy according to the Western medicine? You don't, like you go to for your medical test and say, okay, your blood work is okay, your enzymes okay, and everything is fine, you know. But Ayurveda, what they say, कि सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मा, मन इंद्रिया, स्वस्थ इति धीयते. So it is not just physical body, which is your digestion and your elimination and absorption, but it is also your mind and your soul. Your soul is established, so it goes to mind and senses and consciousness and into soul, to journey of the soul. So Ayurveda compasses all that spiritual path of a person, from physical, mental to the consciousness level. दैट्स लवली, दैट्स लवली. ये बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन थी आयुर्वेद को. आगे बढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि बेसिकली
इंडिया में और कनेडियन लाइफस्टाइल्स में, इंडिया में ऑब्वियसली हमारे घर में जैसे आपने पहले भी मेंशन किया, दादी नानियों के टाइम से वो आयुर्वेद को किसी ना किसी चीज़ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कनाडा की लाइफ ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने क्या फील किया कि ये लोगों को आयुर्वेद कैसे अपनी लाइफ में अभी लेके आना चाहिए? जो साउथ एशियन है उनकी बात अलग है कि देखो, हम जब खाना बनाते हैं तो हम हल्दी डालते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हल्दी के क्या बेनिफिट्स है? डिटॉक्सिफिकेशन है लिवर का, इट वर्क्स ऑन बाइल सिक्रीशन, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं तो खाना अच्छा करता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी, तो जॉइंट या कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो दैट इज़ हल्दी। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से व्हेन वी ईट पकौड़े, we eat the ajwain. Why we do that? Because ajwain helps digestion of the heavy chana flour, besan. So Indian cooking has those spices and the seeds and like cumin, coriander, जो भी है, तो वो सब मसाले हैं, that is all balanced. So when you eat Indian food, it is all balanced, in that way. But see, for the Westerners, and especially people who are eating meat, Ayurveda is not just about Indian food. So Ayurveda teaches how to substitute, because it's basically a taste. तो spicy taste है, तो spicy taste not only in हमारे black pepper में है, लेकिन there are other wasabi है। तो अगर sushi खाते हैं तो पता है sushi के अंदर ginger और wasabi होता है, तो that is also their Japanese way of putting spices in the meal. Chinese होते हैं तो उनके भी तो hot sauces और होते हैं ना। तो every culture has their own balancing of the taste. So there are 6 tastes in Ayurveda. So all the 6 tastes that has to be present in a meal. तो whether आप western खाना खाते हो या Indian खाना खाते हो या Chinese or Japanese, whichever food, it has to be balanced. So it has to have all the colors, जैसे हम रेनबो जैसे बोलते हैं कि all the colors होने चाहिए, all the different textures होने चाहिए खाने में, और spices होने चाहिए, और you go according to the season. तो season की जो fruits, vegetables होते हैं ना, वही खाने चाहिए। तो जैसे हम अभी winter आ रहा है, तो हम warming foods, और अभी देखो मार्केट में अभी कौन से fruits मिलते हैं? Apples and oranges. You don't eat strawberry and watermelon at this time. Yeah. तो you also vegetables में जैसे root vegetables अभी ज़्यादा आते हैं, तो you eat root vegetables हैं, so nourishing, warming foods. तो pumpkin latte और ये वो सब आप देखते हैं ना, तो सीजन के हिसाब से। तो that's what incorporate, whether it's Eastern diet or Western diet, it can be. ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना रिसेंटली एक जिम इंस्ट्रक्टर थे हमारे साथ, ही वॉज अ फीमेल टू। तो उनका कहना था कि बेसिकली कनेडियन लोग जो है ना, ये विटामिन B12 में बहुत सफ़र करते हैं। आपके अकॉर्डिंग कनेडियंस की लाइफस्टाइल में, या जो इंडियंस भी कनेडियंस की लाइफस्टाइल एक्सेप्ट या अडाप्ट करना शुरू करते हैं, कौन से बेसिक मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स में मिस आउट करना शुरू कर देते हैं? While coming in Canada, you mean? या जो कनाडा रह भी रहे हैं। B12 जो होता है वो it comes from the earth. तो जो सोइल होती है ना, सोइल में जो घास जो गाय खाती है, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट से B12 निकलता है। लेकिन अगर the cow's milk what you are getting, it's not coming from the grass fed. तो grass fed नहीं है, तो B12 तो वो दूध में होगा ही नहीं ना। तो दैट्स अ रीज़न वी गेट डिफिशियंसी, बिकॉज अभी क्या है कि द वे द कल्टिवेशन हैपन्स, अगर हम ऑर्गेनिक खाना नहीं खाते हैं, रेगुलर वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं आते हैं। तो हमें जैसे दूसरे जैसे विटामिन्स या लेने की ज़रूरत पड़ती है, B12 है या विटामिन। अगर हम इतने ऑरेंजेस या लेमन्स नहीं खाते हैं तो टेक विटामिन C। और आयुर्वेद में भी ऐसे हर्ब्स हैं, जैसे आंवला है, तो आंवला हैज़ मोर विटामिन C देन ऑरेंजेस। 20 ऑरेंजेस का एक आंवला में हो जाता है। तो आंवला, और इवन देयर आर सो मेनी आयुर्वेदिक हर्ब्स दैट वी आर फेमिलियर विद एंड वी हैव टेस्ट फॉर इट। तो इट्स, और क्या होता है कि vitamins में it has to be very tailored approach,
ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक मोर इज़ बेटर, तो लोग पूरे 50 विटामिन लेके बैठते हैं, लेकिन एंड देर इज़ नो वन टू गाइड देम कि हाउ यू टेक द विटामिन्स। तो टेलर्ड अगर अप्रोच है विटामिन्स तो दैट इज़ गुड कि इफ़ यू आर वीगन देन यू नीड सर्टेन B12 और यू नीड दैट, लेकिन एवरीबडी डजंट नीड एवरी विटामिन, सो दैट इज़ वन थिंग। और उसमें ज़्यादा विटामिन लेने से भी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो लिवर हैज़ टू प्रोसेस दैट विटामिन्स, तो दैट ऑल्सो हैव टू कंसिडर दैट। एंड इफ़ यू ईट हेल्दी ऑर्गेनिक फ्रेश फूड्स तो यू डोंट नीड सो मेनी विटामिन्स। बिल्कुल। अच्छा नीलम जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे। आजकल के समय में, आज वैसे 2-3 सालों से हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुन रहे हैं कि फीमेल्स में ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती थी, पर अब लेटली लाइफस्टाइल डिजीजेस आना शुरू हो गए हैं मेंस्ट्रुएशन को लेके भी, जैसे कि PCOD, PCOS, और बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली मेरे को याद है, मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि 70% वुमेन अब इस चीज़ को कर रही हैं, सफ़र कर रही हैं। क्या रीज़न है कि आजकल PCOS, PCOD है? कि फिजिकल जो एस्पेक्ट हम पहले जो घर में काम करते थे ना, तो दैट लाइक व्हाट यू कॉल लाइक स्वीपिंग द फ्लोर, मॉपिंग द फ्लोर, उस तरह की जो एक्सरसाइज करते थे ना, तो दैट यूज टू कॉन्ट्रैक्ट सर्टन मसल्स। तो वो एक्सरसाइज अभी नहीं होती है, हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, ऐसे भी है। और ऐसे अगर जिम में या एक्सरसाइज करो तो यू डोंट यूज़ ऑल द मसल्स दैट यू नीड टू फॉर द फीमेल। तो एक तो एक्सरसाइज नहीं होती है, दूसरा क्या होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दैट्स अ टाइम यू टेक इट इजी, यू रेस्ट। तो रेस्ट तो कोई करता नहीं है, एंड ऑल्सो द डाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इफ़ देयर इज अ ड्राइनेस इन द डाइट, अगर आप स्नैक्स खाओ, प्रिपेयर्ड लेफ्ट ओवर फूड्स, ड्राई फूड्स, बाहर से खाना खाओ, लाइक फास्ट फूड्स एंड थिंग्स लाइक that causes a dryness in the system, वात जो बढ़ता है, तो that is one of the reason that women they have all these period pains, because any pain in the body it's caused by vata dosha. So if there is vata is balanced by eating nourishing warm foods, taking rest during menstruation, तो ये इश्यूज नहीं होती है। मैंने तो कभी ये सब तो देखा नहीं, तो एक्सपीरियंस किया, लाइक आई हैड अ वेरी हेल्दी लाइफ until I got arthritis, which led me to Ayurveda. Otherwise I was always thinking that people have health issues because they're not taking care of themselves. बिल्कुल। अच्छा, व्हाट डू यू एडवाइस द वुमेन या यंग वुमेन आउट देयर जिनको पीरियड्स में डिलेज होते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आप क्या और कौन से प्रोडक्ट्स एडवाइस करते हो? There is a very interesting herb called Shatavari. So Shatavari is the herb that is companion for women throughout her life. So for the younger girls to regulate their periods, not to have PMS issues, Shatavari. Then for the fertility, then for women to become pregnant, and then during pregnancy and even postpartum, Shatavari is very helpful, and also it's galactogen, for women, for the new mothers to have milk. And then during menopause also, Shatavari is very helpful for many reasons, phytoestrogen and things like that. So there are certain herbs, जैसे जिंजर है, शतावरी है, अश्वगंधा है. So those are the herbs which you can be taken by women at all ages to have all these issues, resolve different issues. Bilkul. Yes, yeah. And of course you need to have a custom, treatment, in the sense that go to a consultant, Ayurvedic practitioner, and try to find out what are your health issues, because it's balancing your dosha. So vata will be pain, pitta will be inflammation, and kapha will be weight gain. So depending on that we will बिल्कुल advise people. बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले नीम जी, कोई भी ऑडियंस में जितनी भी लेडीज देख रही हैं, कोई शॉर्ट 2 टिप्स टू मेंटेन अ हेल्दी मेंस्ट्रुअल लाइफस्टाइल, इन शॉर्ट कोई 2 टिप्स? 2 tips, okay. The first is, as I told you, prepare 1 week before your menstrual period to make sure that you're eating nourishing foods, drinking warm water, and exercise.
yoga asana, especially the one that are specially for the lower abdomen. So those exercises. That's what I बिल्कुल. would say. And second tip? Second tip is during menstruation, take rest. Because that is the one that is going to determine your next period. So you take enough rest, like a couple of days, and I think that's it. Have a positive mind and meditate and बिल्कुल. yeah. बिल्कुल. अच्छा, नीलम जी, आयुर्वेद इस टाइम पे एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है ना जिससे पीपल आर एक्चुअली गेनिंग आउट ऑफ इट, है ना. आपने बाबा रामदेव जी का भी जिक्र किया, उन्होंने बाहर भी लोग बहुत इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को लेते जा रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं. सो आपके अकॉर्डिंगली आयुर्वेदा को डेली लाइफ में हम लोग कैसे अपने साथ अडेप्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई बिगिनर है जिसको अपने आयुर्वेद को अपनी लाइफ में लेके आना है, वो कैसे शुरुआत कर सकता है? So there are three pillars I would say कि आहार. So आहार is not just the food. What you take inside you. So whether you take information, what kind of information you're taking within you, what kind of food, what kind of water, what kind of atmosphere. So ahar, that is important. Next is vihar, the lifestyle. So do the work that is you enjoy the work. If you enjoy the work, there is no stress. That's true. It's not just the money, but it's the way quality of life. So if we set our priorities, what gives us happiness, go for it. And then if the ahar and the vihar, both they don't work due to some reason, then there's always aushadhi, which is the medicine, which is natural and which doesn't cause side effects. When you were in the beginning, you were talking about, like what is happening with the taking the chemical medicine, pharmaceutical medicine is. Right now, they were saying that over the counter, there are so many people, like just because they have little pain, they'll go for Advil, they will go for little bit of indigestion, and they will go anti-acid. So what happening is that people in their 30s to 40s, they are experiencing osteoporosis. They are having hip fractures and all those things that were not there. That was a disease of older people, osteoporosis. But now the younger people, because use of over-the-counter medications, because it's like they want like a solution in a pill, and that is what is leading to. So that's what I would say, that be careful when you take over-the-counter medicines, because they put a note on those medicines that you should not take more than 15 days at a time, and you should only take 3 times in a year. But people over the counter, they just buy and they just have a pain or something like that. They just use it so frequently. बिल्कुल. अच्छा नीम जी, छोटी सी एक गेम खेलेंगे आपके साथ. गेम का नाम है रैपिड फायर. सो बेसिकली मैं कोई भी एक कंसर्न दूंगी, कोई भी, फॉर एग्जांपल पीरियड हेल्थ होगी, आपने एक हर्ब हमें बताना है विच कैन हेल्प इन इट, और मे बी यू कैन स्पीक फॉर योर प्रोडक्ट ऑल्सो. बस आपने बोलना बहुत फास्ट है इसमें. यू हैव टू आंसर फास्ट. आप अपना कोई प्रोडक्ट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर फॉर योर हेल्थ कंसर्न्स विद the CEO herself, Neelam Toprani. So Neelam ji, let's start with it. The first is healthy hair. Bhringraj is king of hair. Bhringraj का oil, Bhringraj का powder, दोनों ले सकते हैं. Healthy skin. नीम. अच्छा. In Ayurved form also कि natural में भी? Powder. Okay. Powder या capsules, दोनों ले सकते हैं. Bone health. Bone health, Google. Oh wow. Okay. Eyes. Eyes, hurt. Anything which Ayurved में. Saffron. Okay. Saffron, eyes के लिए. Saffron is the best. That's what I do it. Like दूध में saffron डाल के पियो. That's good. Okay. Mood relaxants. Mood. Brahmi है. There are a lot of mental. Ashwagandha है. Okay. Male fertility health. Tribulus. Okay. और हमारे पास एक प्रोडक्ट है Tribulus Power. अच्छा. आप थोड़ा बताना चाहेंगे उसके बारे में? Tribulus Power is a very good formulation. It's Tribulus, which is Gokshura. There is Kapikachu. And there is Ashwagandha. So this formulation, it works on prostate health for men, for virality, and also
any urinary issues. So this is an excellent formula for me. बिल्कुल. सबसे जो मेरा नेक्स्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा डायबिटीज़. डायबिटीज़ के तो बहुत सारे हर्ब्स हैं. हमारा एक प्रोडक्ट है डायरीड, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ हर्ब्स. एंडोग्राफिस है, नीम है, कड़वे जो भी हर्ब्स है वो तो है ही. करेला जो हम खाते हैं, दोज आर द थिंग्स. बट ऑल्सो देयर डायबिटीज़, आयुर्वेद में देयर आर 18 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़. सो बेस्ड ऑन व्हाट डायबिटीज़ देयर आर वाता रिलेटेड, पित्ता रिलेटेड एंड कफा रिलेटेड. जो कफा रिलेटेड जो वेट गेन के साथ होता है, दैट इज ईजीएस्ट डायबिटीज़ टू क्योर. बट पीपल व्हेन दे आर लूजिंग वेट, और वो जो डायबिटीज़ होता है और हेरिडिटरी, दैट इज डिफिकल्ट टू बिल्कुल रिवर्स. बिल्कुल. किडनीज के लिए कुछ? किडनीज के लिए पुनर्नवा मीन्स वन दैट रिन्यूज एवरी डे. बहुत अच्छा हर्ब है फॉर द यूरिनरी हेल्थ. बिल्कुल. डाइजेस्टिव हेल्थ? बेस्ट इज त्रिफला. ओके. और आंवला भी है. मेरा लास्ट होगा फीमेल फर्टाइल हेल्थ. शतावरी है, आपने बताया. हाँ जी. और फीमेल्स के लिए there are, depending on the health, you know, what aspect you are looking, there could be a special herb for that. So if it's a hormonal, then there's a Manjista. Manjista will work on women's hormones. There could be Punarnava. Depends on what issues have. बट नीलम जी, यू वर कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग एट द गेम, बिकॉज आंसर्स आपके अंदर से ऐसे 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 आ रहे थे, एंड दैट एक्चुअली शोज कि कितनी डीप रूटेड नॉलेज है आयुर्वेद की. अब मेरे आखिरी एक दो सवाल आपसे यही रहेंगे. पहला मैं चाहूँगी कि कोई भी जो मेल ऑडियंस देख रही है, अगर हमको उनको डे टू नाइट का एक शेड्यूल देना हो विद आयुर्वेद इन देयर लाइफ, आप उनको क्या एडवाइस करोगे कि कैसे कैसे उन्हें कौन से हर्ब्स लेने चाहिए? हर्ब्स तो ऐसे मैंने बोला था ना कि हर्ब्स लेने की ज़रूरत नहीं है. आहार और विहार ठीक रखो, तो औषधि लेने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन सम ऑफ द थिंग्स व्हाट वी कैन इनकॉर्पोरेट इन द डाइट इज़ कि आजकल लोग स्मूदीज बहुत पीते हैं. तो स्मूदीज में आयुर्वेदिक हर्ब जैसे मोरिंगा है, तो मोरिंगा ग्रीन्स है, यू नो ऑल्सो वर्क्स ऑन जॉइंट्स एंड इट्स फुल ऑफ vitamins and minerals and enzymes. So one of the herb I would suggest is moringa in the smoothies. Another one I would suggest is ashwagandha for men. That is also really good. And then amla to bring that taste in the smoothie. So, and then on the protein powder also they can use ashwagandha and maybe ginger, or depends on that. And then with the meal, of course, you are going to eat meal which has all the taste, sweet, sour, salty, pungent, bitter, astringent. वो सब taste अगर खाने में है, तो you have to see that whether you have all the 6 taste, then you have a complete meal. Of course, you know, you eat according to the season. So in the summer we would have salads and things like that. In the winter we would have soups and, you know, cooked vegetables. और dinner में eat light खाना है, और 7 बजे के पहले खा लेना. क्या बात है. वाओ, दैट्स आई गेस समड अप इन वेरी शॉर्ट. अच्छा नीलम जी, आपका एक और बेबी वेंचर है पद्माश्री ऑयल्स, जिसके बारे में मैंने पढ़ रही थी. ये ऑयल्स वाली वेंचर आपका कहाँ से शुरू हुआ और ये क्या थॉट था? तो आयुर्वेदा में क्या है कि इंटरनल मेडिसिन है, वैसे ही एक्सटर्नल मेडिसिन है. तो ये जो मसाज ऑयल है वो आयुर्वेदा में एक्सटर्नल मेडिसिन है. तो वो भी कम से कम 20 से 40 हर्ब्स होते हैं, उससे ये ऑयल बनता है. तो इसकी जो प्रोसेस है बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऑयल को 4 पार्ट्स ऑफ द हर्ब्स, 16 पार्ट्स ऑफ वाटर एंड 16 पार्ट्स ऑफ ऑयल, वो उसकी फॉर्मूला है. तो लेकिन वो एक साथ नहीं डालते, वो धीरे धीरे डालते हैं. तो वो जो हर्ब्स होते हैं उसको पीस के उसमें पानी डालते हैं, कभी कभी कोकोनट वाटर डालते हैं, कभी कभी दूध डालते हैं, और उसे उबालते हैं, और उसमें मोस्टली सेसमी ऑयल होता है. तो उससे वो कम से कम 20 दिन से 40 दिन तक उसकी कुकिंग होती है, स्लो टेम्परेचर 60 डिग्रीज. तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो ऑयल है उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है. तो ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो ट्रांसडर्मल हो जाते हैं. तो ये हर्ब्स के साथ उसकी सिनर्जी होती है. तो वो जो हर्ब्स
और ऑयल जो मिक्स होता है उसका 45 डेज़ के बाद उसका क्रिटिकल पॉइंट आता है। उसके बाद उनको पता है कि अगर 1 मिनट ज़्यादा बॉईल करेंगे ना तो वो ऑयल जल जाएगा, अगर वो कम करेंगे ना तो वो ऑयल ख़राब हो जाएगा क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। तो ये बहुत ही ध्यान से मेथड है। तो आजकल क्या हो रहा है कि इंडिया में कि कमर्शलाइज हो गया है, तो लोग क्या करते हैं 300-400 डिग्री से वो ऑयल को हर्ज डाल के उबाल के बना लेते हैं। लेकिन हम जैसे मेरे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो इंडिया में मेरे लिए बनाते हैं, तो वो क्लासिकल जो मेथड है उसके हिसाब से बनाते हैं। अगर 51 इंग्रेडिएंट है तो वो 51 इंग्रेडिएंट ही होते हैं उसमें। तो ये ऑयल इतने इफ़ेक्टिव हो जाते हैं कि जैसे आप अगर कोई भी दवाई लो ना ओरल, इसी तरह अगर ये ऑयल लगाने से भी वही चीज़ बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो ये ट्रांसडर्मल बोलते हैं कि ये आपकी स्किन के लेयर से जाके कैपिलरीज में जाके एब्जॉर्ब करके वो बेनिफिट दे देता है। जैसे बहुत फेमस ऑयल है आयुर्वेद में महानारायण तैलम, तो वो जॉइंट पेन के लिए लगाते हैं। तो इमीडिएटली जब लगाओ तो इट स्टार्ट्स टू वर्क इमीडिएटली। तो बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं आयुर्वेद में, अबाउट 150 ऑयल्स है। वाओ। तो कभी कभी इंटरनली भी ऑयल्स देते हैं वो, और कभी एक्सटर्नली लगाते हैं। बिल्कुल। तो आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द मसाज ऑयल्स एंड क्या बात है। या सो नीलम जी, मेरे को लगता है आज के शो के लिए आपने इनफ हमें वो दे दिए कि हम पहले ना इसी को थोड़ा सा हाफ पे, मेरे को लगता है अगर मैं और मेरी ऑडियंस हाफ को भी अगर अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लें तो वी आर आई गेस ऑलमोस्ट हाफ वे टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ। क्योंकि अभी हमारी लाइफ्स बहुत डिस्टॉर्टेड हैं, 9 to 5 में हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो हमारी बॉडी को एक्चुअली चाहिए। और मेरे को लगता है आज का शो with Neelam Toprani is going to be a wake-up call हम सब के लिए कि अब it's time to get up, leave our fizzy drinks or Red Bulls to get the energy and get to actually natural substitutes क्योंकि यही आके काम आएंगे। So Neelam जी, it was lovely having you here with us today। कुछ audience को अगर आप कहना चाहते हैं तो। I have nothing to say. I'm just learning. I'm a student. Like Wow. every day we are learning and trying to experiment on ourselves and say what works, what doesn't work. That's so humble of you. Yeah. बिल्कुल। I the more I study Ayurveda, I'm saying I don't know anything. Wow. That's what I feel. Lovely. I guess this is the approach कि मैंने फर्स्ट टाइम इतना किसी को हम्बली अपने आप को और अपने इतने अच्छे यू कुड से वेल रनिंग प्रोफेशन को बहुत ही सिंपली पोर्ट्रे किया हो। सो नीलम जी से अगर आपके कोई भी क्वेरीज या कुछ भी हैं तो इनकी ब्रांड नेम और सब ये बता चुके हैं, बाकी हम मेंशन भी कर देंगे। आप इन्हें रीच आउट करके इनसे कोई भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और ऑब्वियसली शी हैज़ अ वंडरफुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर यू। और कैनेडा वाले लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली फर्स्ट मैं कह सकती हूँ कि ओरिजिनल आयुर्वेद, एक्चुअली द ओरिजिनल आयुर्वेद इन योर होम्स, you can go and get it at Samanti. Neelam ji is always there to guide you. Till then, Neelam ji, thank you very much. और आज के इस प्रोग्राम से मैं प्राची सैनी आप सबसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे।